hello to all of you. I hope all of you are doing great and fine. So let us explore new areas. So we will be talking about fractions, and I'll be answering to a question asked by one of you, that how to calculate or estimate the age of universe. Before going to the whiteboard or digital board, let me know that everything is all right. The board is visible and my voice is also audible. Write it quickly so that we start. Besides, also invite your fellows to this live session so that they also get benefit. They get something from live class. Okay, thank you, Iqra Saeed. So here we go, and that is, let me write it, fractions. So fraction, simply if we say dividing of something into parts of a whole. ठीक हो गया, ये इसकी शॉर्ट डिफिनीशन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड पे, तो यह आपके लिए एक नोट्स की काम भी कर देंगे, ठीक है। इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में। जो थ्योरी है ना, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एबिलिटी पोर्शन है और इसमें हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सो दैट इज, किसी भी चीज़ को किसी होल को पार्ट्स में डिवाइड करने को हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन? सो मेनली वी हैव 4 types, and one is number first, that is proper fraction, and proper fraction is, for example, 1/5, 2/3, right, or 4/6, 9/12, and so forth. इसको क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं? इसलिए कि इसके जो डिनोमिनेटर है, ये वाला जो निचला हिस्सा है, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं और ऊपर वाले को हम नोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर लार्जर हो, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, as opposed to the second, which is improper fraction, right? So as I told you already, that it is proper fraction is opposed to improper, and if you had its example 5/4,
it can be 9 over 3, it can be 3 over 1, it can be 10 over something like 7. So here you see denominator is smaller than its numerator, so that's why we call it improper fraction. And now coming to another type, that is called mixed fraction. So mixed fraction, like 1 and 2 over 4, or 3 and 2, 4 over 5, or it can be 9 into 6 over 3. So these are the example of mixed fraction, because there we have two parts. One is the fraction part and the other one is whole part. So that's why it is called whole and this is fraction part. It is called mixed fraction, right? And the last one is known as equivalent fraction. Equivalent fraction. So equivalent fraction, it looks different, but really the same. For example, 1 over 2, which is equivalent to 2 over 4, which is again equivalent to 4 over 8. इसको हम equivalent fraction बोलते हैं, ठीक है. This one is more complicated form of this one, and this one is the simplest form of the rest of the remaining. ठीक हो गया. So yes, we are going good. Thank you. अच्छा, अब आते ऑपरेशंस की तरफ. जैसे कि हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है. हम ये जो चार ऑपरेशन इस किस तरह फ्रैक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. सो वी हैव एडिशन, राइट, एंड दैट इज let's take example first. We have 1 over 16 plus 3 over 16. First of all, you should know that both are proper fraction because their denominators are greater than their numerators, right? And in this case we see that both denominators are same. So in doing operation like addition, subtraction, we see that either their denominators are same or different. So in this case we have same, so it is easy to add them up, like 1 plus 2 equals 4 and you have 16 the denominator. That is easy. Again
if we have, for example, another fractions like 4/10 plus taking some example like and 1/3. So here in this case we have different denominators. अब इसके साथ क्या करेंगे, ठीक है, तो इसके साथ हम थोड़ा आगे जाएंगे. इसके साथ जो इसके जो क्या कहते हैं इसको, नॉमिनेटर्स है, ठीक है, इसको हम एक ऐसे कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई देंगे कि आगे जाके ये हमें कांस्टेंट नंबर दे, ठीक है. सो मैं ये कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, सो 4/10 एंड ये वाला भी 3 है, ये वाला भी 10 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई लेते हैं और इसको भी 3 से, कांस्टेंट नंबर आ गया ना, ठीक है. जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 times 4 equals 12 and 3 times 10 equal 30, ठीक हो गया. दूसरी वाला लेते हैं 1/3 टाइम्स, ये भी इससे मल्टीप्लाई लेंगे, कांस्टेंट है ये, इसी केस में हमने इसको कांस्टेंट लिया है. आपने ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जो आगे जाके डिनोमिनेटर जो हमारे पास आएंगे वो कांस्टेंट होंगे, दोनों के हिसाब से, दोनों के डिनोमिनेटर के हिसाब से, ठीक है. सो अगेन टाइम्स 3, sorry, in this case it is not 3, it should be different. Okay, let me erase it. It should be different. It should be inverse of the palmar, like 1/3 times 10 and then times 10. So here we get 10. 1 times 10 is 10, while 3 times 10 is equal to 30. ठीक हो गया. So in both cases we get the same denominator. हमें ये चीज दरकार है, ठीक है. जब सेम डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाते हैं तो फिर उसकी एडिशन या दूसरे ऑपरेशन आसानी से हम करते हैं. बाकी सेम ही मेथड है. 12 टाइम्स 12 डिवाइड बाई 12 प्लस इसको हम एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, टाइम्स 10 divided by 30. So we get what? 22/30. ये हमने ऐड कर दी इसी तरीके से. So I hope you are getting the idea. Okay, ये तो हो गया एडिशन. मैं बता रहा हूँ जो सेम डिनोमिनेटर वाली बात है वो तो आसान है, बस उसके डिनोमिनेटर प्लस कर दो और वही नॉमिनेटर लगा दो. लेकिन जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उसी केस में हमने ये ऑपरेशन जो है ना, ये इक्वेशन सारा जो है ना ये करना है. और उसके कॉन्सेप्ट उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमने उसको एक ऐसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आगे जाके जो हमारे पास डिनोमिनेटर आते हैं दोनों के सेम आते हो, ठीक है. अच्छा, सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं. सो सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, लेट्स टेक एन एग्जांपल. फर्स्ट वी हैव you know,
5 और 8 -1 और 6। सब्ट्रैक्शन भी जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो बस सिंपली सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो और ऊपर वाली जो नॉमिनेटर उसको माइनस करो, नीचे वाली जो क्या नाम है डिनोमिनेटर है उसको लगा दो जो सेम है। लेकिन जब डिफरेंट है इन दिस केस वही है, ठीक है। तो फिर आपका इस सिलसिले में क्या करना है, उसका इस तरह ऑपरेशन करना है कि 8 का अलग आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, और 6 का अलग, ठीक है। कैसे, चलो 8 का करते हैं। सो 8 का हम जो मतलब फैक्टर्स निकालते हैं ना, कल हमने बात की थी फैक्टर्स और मल्टीपल्स के, ठीक है। इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, उससे आगे जाके हम ये ऑपरेशन आगे लेकर जाएंगे। सो 2 टाइम्स 4, 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इक्वल्स 8। फिर भी ये हो सकते हैं। सो 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4, ठीक हो गया। अब इस तरह 6 के लेते हैं। सो 2 टाइम्स 3 इक्वल्स 6, राइट। और फिर आगे तो 1 आते हैं, लेकिन फिर भी लिखने या ना लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास 8 और 6 की अलग अलग क्या आ गई, फैक्टर्स आ गई, ये वाले और इसके ये वाले फैक्टर्स आ गई। अब इसका हम क्या लेते हैं, 8 का अलग लेते हैं। सो 8 क्या क्या है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, और 6 की अलग क्या है, हमारे पास 2 है। ये 3 वाला तो हिसाब नहीं होता, मैंने लिख दिया, लेकिन ये इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, सो दैट इज 2 टाइम्स 3, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके जो फैक्टर्स है ना उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। इसकी जो कॉमन नहीं बल्कि सर्टन फैक्टर्स हम लेंगे, ये तो कॉमन हो गई, ठीक हो गया, ये हम नहीं लेंगे, बल्कि ये वाले जो है ना जो सर्टन फैक्टर्स है हम ये इसको इसका मल्टीप्लाई लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से कि हमारे पास एक नंबर आ जाए, ठीक है। एक हिसाब तो ये हो गया, और दूसरा जो है ना एक चीज मैं यहाँ भूल गया, हमने यहाँ ये भी लिया है, ठीक है, ये भी लिया है, तो ये इसमें नहीं है, ठीक है, बल्कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट ये वाला है, ठीक है। तो इसमें 1 2 जो है ना वो क्या होना चाहिए, वो गायब होना चाहिए, ठीक है। अब जब ये गायब हो जाए तो फिर हम सारे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, ठीक है। सो ये 2 2s are 4 and then 2s are equals 8 and 3 times 8 equals 24। हमारे पास ये नंबर आ गया, ठीक है। हमने यहाँ गलती की, अब मैथमेटिक्स में ये बात है कि आपने मतलब एक ही स्टेप गलत किया तो सारे ऑपरेशन गलत हो गए, ठीक है। तो यहाँ ख्याल रखना चाहिए जो फैक्टर्स है ना वो हम लेंगे। हमने यहाँ मैंने यहाँ ये वाले भी लिया था, इसमें नहीं, लेकिन ये वाली चीज़ इसमें नहीं है, बल्कि ये जो फैक्टर्स है हम ये लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर आ गया, ठीक है। ये तो इसका बन गया एलसीएम, जो आगे जाके हम दूसरे कॉन्सेप्ट में सीखेंगे, ठीक हो गया। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका जो पहले हमने की, ठीक है, वही है, ठीक है। लेट मी राइट इट
फॉर एग्जांपल 5 और 8 टाइम्स और टाइम्स, इस तरह 1 और 6 टाइम्स टाइम्स, ठीक है। अब चारों को खासकर जो डिनोमिनेटर है दोनों की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये वाला नंबर आ जाए जो हमने बतौर प्रूफ भी निकाला है, ठीक है। इस हिसाब से आपका ऑपरेशन गलत नहीं होगा। तो इसको हम 3 से लेते हैं और ये भी 3, सो 3 टाइम्स 5 इक्वल्स 15 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 8 इक्वल्स 24, ये वाला सही है इसके साथ। एंड नेक्स्ट 1 टाइम्स, इसके साथ क्या कौन सा नंबर ले, खासकर डिनोमिनेटर 6 के साथ कि हमारे पास क्या 24 आ जाए। तो 4 इज द बेस्ट ऑप्शन, सो 4 1s 4 एंड देन 4 टाइम्स 6 इक्वल्स 24, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना डिनोमिनेटर दोनों की क्या है, सेम है, एंड जस्ट लाइक द एलसीएम ऑफ बोथ द फ्रैक्शन, ठीक हो गया। सो नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट देम इजीली। सो 5 15 और 24 ये वाला हो गया, -4 और 24। अब डिनोमिनेटर अपनी जगह पे आ गई एंड नोमिनेटर हमारे पास क्या बनते हैं, वो 11। सो दिस इज द सब्ट्रैक्शन। Let me check that we are going good. I hope so. You should write these main points so that they retain in your minds. You own it. Okay? अच्छा, अब इसके मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो गई, आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ठीक हो गया। सो इफ वी हैव लेट्स से 2 टाइम्स 3 डिवाइड बाय 5 टाइम्स 7, इसको हम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 2 टाइम्स 3 इक्वल्स 6 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 7 इक्वल्स 35, ठीक हो गया। ये तो आसान है, ठीक है, बस उससे वो मल्टीप्लाई करने काम तमाम हो गया। आगे हमारे पास जो है ना डिवीजन है, और डिवीजन ऑपरेशंस आर लिटिल बिट क्रेजी, थोड़ी सी मुश्किल है। सो डिवीजन की हम बात करते हैं, लेट्स से वी हैव 1 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स 1 और 4। पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई, उसके अपोजिट है मल्टीप्लाई। इन्वर्ट किस तरह करेंगे, 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 1, इन्वर्ट हो गया ना, इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। अब साइन तो चेंज हो गया, इन्वर्जन की वजह से जो ऑपरेशन है उसका साइन भी चेंज हो गया। अब ये मतलब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो क्या है वो 1 टाइम्स 4 इक्वल्स 4 एंड 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4, ठीक हो गया। सॉरी, मैंने यहाँ कुछ गलत तो नहीं किया है। यस, यहाँ एक चीज़ को मैं क्या कर गया गलत, ये 1 है, ठीक है। 2 टाइम्स 1 इज 2, ठीक हो गया। सो हमारे पास क्या आ गया आंसर, डिवीजन 4 और 2 आ गया। अब इसको आगे जाके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसे कि इससे क्या 2 और 1 और 1 की वजह से भी 1 है, तो इसको हम 2 एज ए सिंपल लिख सकते हैं,
ठीक हो गया, ये डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन थी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो ख़ासकर एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो क्या है, क्या नाम है, फ्रैक्शन के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मिक्स फ्रैक्शन और फिर उसकी डिवीजन मिक्स फ्रैक्शन भी है। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन की हमने तो यहाँ पहले बात की है। ठीक है, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट एज वेल। सो हियर वी गो एंड लेट मी राइट इट, multiplication of mixed fraction। ठीक हो गया। Let's say we have 3 into 2 over 3 एक mixed fraction है और इसको हमने क्या करना है, एक दूसरे मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने है। 2 into 1 over 2 दोनों मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में ज्यादातर हमारे पास क्या आएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेंगे। तरीका ये कि आपने इसके जो होल पार्ट है टोटल, इसको आपने इसके डिनोमिनेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर जब इस ऑपरेशन के रिजल्ट में जो भी प्रोडक्ट आएगा उसी प्रोडक्ट को आपने इसी नोमिनेटर से क्या करना है, एड अप करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं फिर बता रहा हूं, ये वाला जो होल पार्ट है इसको आपने इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और जो प्रोडक्ट में आएगा उसको आपने इसके नोमिनेटर से एड अप करना है। ठीक है, सो इफ वी डू दैट इज व्हाट 3 times 3 equals 9 and when we add 2 to 9 then it become what, 11। अब ये तो नोमिनेटर आ गया, वैसे भी डिनोमिनेटर तो सेम है तो हम वही लिखेंगे। ठीक है, दूसरा वाला कहते हैं इसको आपने इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, 2 2s are 4 और इसके जो 4 प्रोडक्ट आते हैं उसको आपने 1 एज अ नोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन सम अप करना है। सो 2 2s are 4 प्लस 1 इक्वल्स व्हाट, 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या है इसी केस में, वो हमारे पास 2 ही है। ठीक हो गया। अब ये क्या है, ये तो मल्टीप्लिकेशन हम कर रही है, साइन तो वही है लेकिन थोड़ा सा तरीका टेढ़ा था। ठीक है, अब आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 11 times 5 equals 55 and divided by 2 times 3 equals 6। तो ये आपके पास आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक हो गया। अब अगर आपने दोबारा इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरह करेंगे, ये भी एक तरीका है। तो सिंपल है। ठीक है, आपने इसकी जो नोमिनेटर है वो क्या है, 55 है, आपने इसी को इस 55 को इसी के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही ये वाला मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। इसका नहीं, सॉरी, इसका आपने इसका मल्टीप्लिकेशन लिया है लेकिन इसका जो है ना
मैक्स फ्रैक्शन आ जाएगा एक ही आंसर में। तो 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। जब हम ये ऑपरेशन करते हैं सो हमारे पास ऐसे क्या डिजिट आ सकते हैं कि जो 35 को डिवाइड करेंगे। सो 6 times 6 36 8 yes 9, so 9 is the best digit. So 9 times 6 equals what? 56. No, sorry, 54. ठीक हो गया। एक हमारे पास रिमाइंडर बचते हैं, तो ये आ गया आपका आंसर। अब इसको क्या करना है आपने, ये वाला तो आपके पास डिवाइजर है, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं मैथमेटिक्स में, इसको हम क्वोशंट बोलते हैं, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। इस चीजों को याद रखें, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है ये आपके पास होल पार्ट आ गया, ये वाला 9 into, और जो रिमाइंडर है ये आपके पास एज अ नॉमिनेटर आ गया, और आपके पास जो डिवाइजर है यहाँ भी एज अ डिनोमिनेटर था, और यहाँ भी आपके पास डिनोमिनेटर आएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए मैक्स फ्रैक्शन के बाद, ठीक है। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर हम इसके डिवीजन की बात करें, अच्छा इकरा सईद एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिस, एक क्या नाम है वेबसाइट है, मैं बता रहा हूँ, मैथस्पन, गूगल में डालो बस डायरेक्ट किया जाएगा, उसकी सारी चीजें कर लो, मैंने भी वहां से सीखी है, ठीक है। फ्रेंकली बात कर रहा हूँ। मैथस्पन, आपके पास वह एक्सरसाइज भी है, आपके पास वह एग्जाम्पल भी है, सारी चीजें उधर पड़े, लेकिन आपने वहां जाना है और चीजों को समझना है और अप्लाई करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब डिवीजन ऑफ मैक्स फ्रैक्शन में शॉर्टली बता रहा हूं, ठीक है, बाकी तो वही ऊपर वाला तरीका है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी राइट इट, 2 into 3 over 8 divided by 1 into 3 over 4, ठीक हो गया। पहले आप जो पहले प्राइस इसमें होती है वही आप ने क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, और इम्प्रॉपर किस तरह होती है वह पहले हमने यहाँ बात की। ये इम्प्रॉपर है ना, या किस हमने ऑपरेशन की, ये वाला ऑपरेशन आपने करना है। सो दिस इज डिवाइड इनटू दिस एंड देन मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ दिस विथ इट्स डिनोमिनेटर। सो 2 times 8 16 and then add up to 3, so we get what, 19 divided by 8 divided by another, that is 1 times 4 is 4 and then 7, so 7 हुआ 4 आ गया। अब ये डिवीजन है, बाकी कंसेप्ट डिवीजन के क्या थे, इन्वर्ट करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, तो बात आसान हो गई ना। तो क्या है, इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट एंड देन मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। तो ये क्या है, 19 over 8 improper fraction है, कीप इन माइंड 19 over 8, और इसके साथ इन्वर्जन के साथ साइन भी चेंज हो गया, डिवीजन था, या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गया। सो 19 डिवाइड बाई 8 एंड मल्टीप्लाई बाई 7 और 4, लेकिन इसको हमने उल्टा करना है, तो 4 over 7, ठीक है। अब इसको क्या करूँ, इसको सिंप्लीफाई करो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
या जो है ना अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करें, ठीक है, सो वी से दैट 4 times 1 is 1 and 4 times 2 equals 8, ठीक है, 4 times 1 is 4 and 2 times 4 is 8, ठीक हो गया। ये हमारे पास बात और भी आसान बन गई। 19 times 1 and 2 times 7, 2 मैंने ये लिया, 1 वाला जो ये था ये मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। अब ये आगे जाके आसान हो रही। सो 19 times 1 is 9, 19 divided by 2 times 7 equals 14, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसको हमने क्या करना है, मैक्स में कन्वर्ट करना है, सो यू कैन डू इजीली बाय टेकिंग 19 एज अ डिविडेंड ऑफ द 14 एज डिवाइजर, ठीक है। तो आप इसको मतलब इस पे डिवाइड करो, आपके पास आ जाएगा 14 times 1 ले ले, आगे तो मतलब नहीं हो सकती, 14 times 2 इक्वल्स 34, तो ये क्या गया 14 और रिमाइंडर हमारे पास क्या बनते हैं 5 आते हैं, ठीक है। अब ये तो मतलब वही रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है, ये डिवाइजर है और ये इसको हम डिविडेंड है, मैं भूल गया था, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर, 1 आपके पास जो क्वोशंट है ये आपके पास एज अ होल पार्ट है, ठीक हो गया, इनटू 5 क्या आते हैं 14 आपके पास as a exemplified website so that you can learn more and more and then apply. Along with this you can also you will be having a lot of practices exercises there, okay. Now coming to one of the question you have asked, that what is how to estimate or calculate the age of universe, ठीक है। First let me know, yes, math is fun, math is fun, इकरा सईद। अब जो ये एस्टिमेशन है ना पेपर के हिसाब से, पेपर में तो पूछा गया था कि आपने जो वेज या मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द एज है आपने उसको डिस्क्राइब करना है इन वर्ड्स, एंड इट वाज इन आई थिंक 2018 के पेपर में, जीएसए के पेपर में ये आया था, वेज ऑफ द और मेथड्स ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ द एज। लेकिन फिर भी अगर ये आ जाए कि आपने हो नहीं सकता, ये आ जाए, ठीक है, उसके बात ये है और प्रूफ ये है कि एक तो इसके जो एस्टिमेशन या कैलकुलेशन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उधर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं करते पेपर में, जाके देख ले अरे एक पेपर में आप कहते हैं कि कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड और या ये कैलकुलेटर के बगैर ही नहीं हो सकती, मैं ये अभी कर रहा हूँ ना तो ये मैं कैलकुलेटर से करूँगा, ये मुमकिन ही नहीं है। मतलब आपके पास जो है ना मिलियन फर्स्ट से लाइट ईयर्स की जो डेटा आते हैं, इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट विथ हैंड, ठीक है। अब टाइम तो बहुत हो गया लेकिन मैं जल्दी जल्दी ये कर रहा हूँ, ठीक है। हाउ टू calculate the age of universe, ठीक हो गया। इसके लिए कंसेप्ट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मैं जल्दी जो टू द पॉइंट बात है वही करूँगा। बाकी अगर किसी ने कोई दिलचस्पी रखने है कि इसको कॉन्सेप्ट ये मतलब वेज जो है ना ये किस तरह आते हैं, ये क्यों आते हैं, ठीक है, तो मैं किसी और दिन उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो है ना मेन
टू वेज या टू मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम एस्टिमेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये मतलब या तो कोई कहते हैं 10 समथिंग 10 पॉइंट समथिंग बिलियन ईयर्स, ठीक है, 13.6 कोई कहते हैं 13.7 13.8 और 14 बिलियन ईयर्स एगो की बात है, ठीक है। जो एक तो हम ओल्डेस्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देख के हम पता लगाते हैं, और ओल्डेस्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टार्स है एंड गैलेक्सीज है, ठीक हो गया। ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, सेकंड मेजरिंग द बेस्ट मेथड, ठीक है। ज्यादातर लोग साइंटिस्ट जो है ना, साइंटिस्ट कम्युनिटी इस पे काम उन लोगों ने काम किया भी है और कर भी रही है अभी। मेजरिंग हाउ फास्ट it is moving, like we know expansion जो एक्सपेंड कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम देखते हैं। तो यहां से एक बंदा था, नाम क्या है उसका, हबल, क्या नाम था, हबल, एडविन हबल, ठीक है। यह बीच में जो है ना सारी दुनिया को मैंने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, आसान अल्फाज में मैं बता रहा हूं। जो सारी चीजें है ना बहुत बड़ी बड़ी मेजर कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैंने क्या कर दी, मैं अवॉइड कर रहा हूं, इसलिए कि टाइम शॉर्ट है और प्लस इररिलेवेंट भी है। इररिलेवेंट इस वजह से है कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, उसकी वजह ये कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होती, और जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते सो वी आर अनेबल टू कैलकुलेट दिस प्रोसेस इन द एग्जाम विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। पूछा भी जा सकते लेकिन उसी वक्त आपको शायद कैलकुलेटर अलाउ कर जाए, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास एक फार्मूला है, मैं जल्दी कर रहा हूं। V इक्वल्स एच डी, ये वाला जो है ना ये वेलोसिटी है, ये वाला इसको हम कहते हैं हबल्स कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कम से कम आधा घंटा होना चाहिए, ठीक है, कि ये किस तरह गया ये एच और डी हमारे पास क्या है, ये तो डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक हो गया। अब जब कांस्टेंट की बात आती है तो इसके साथ हम ये वाला पॉइंट लगाते एच नॉट, जिसको हम बोलते हैं एच नॉट, ठीक है। ये आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई अर्ज नहीं। अब अगर हम एच की बात करें यहां, ठीक है, तो हम इस तरह कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बेसिक फिजिक्स, ठीक है, दैट वी डिवाइडेड बाय डी इक्वल्स एच नॉट, ठीक हो गया। और फिर अगेन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स के मुताबिक हमारे पास जो है ना v जो है ना इक्वल्स डी ओवर टी, टाइम डिस्टेंस वेलोसिटी, right? So we can rearrange this equation into such like v over d equals what? 1 over t। या हमने किस तरह किया, v और d जो है ना यहां ये वाला डी है, ठीक है, ये एच नॉट के बराबर है और वी और डी यहां भी हमारे पास एच नॉट के बराबर है, और यह हमारे पास
जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये इज इक्वल टू ये किसकी बराबर बन जाती है, टी की, इनवर्स ऑफ द टी, 1/t की। ठीक हो गया। सो वी कैन राइट दैट 1/t equals h naught. I hope you get the idea. If not, let me know quickly. Use black pointer. Okay. हो गया। I repeat equation तो ये वाला है फार्मूला, right? So we arrange according to this constant because we want to calculate h naught. और h naught की जो है मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, ये मतलब आपने फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्स, अब ये है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो से सम इयर्स बैक यूनिवर्स वाज लाइक दिस, एंड देन अगर आप और पीछे चले जाए तो आपके पास यूनिवर्स इस तरह था, ठीक है, और पीछे चली जाए तो इस तरह था, और भी मतलब आगे जाए तो आपके पास यूनिवर्स एक पॉइंट था। तो वक्त के साथ ये एक्सपेंड होती जाती है, ये प्रूफ भी हो गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। आगे जाके जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड है रेडिएशन के, ठीक है, उसकी वजह से जो एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें ये चीज़ें मतलब, ये चीज़ मतलब है h naught. So Vg equals h naught, and according to basic principles of physics, V equals d over t. Velocity equals distance over time, and again it is equal to Vg, which is again equal to Vt. So in this case is here Vd equals 1t. So we can write इसी को और इसी को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है, विथ 1/t इक्वल्स, जब ये वाला टर्म इसके बराबर है, ठीक है, तो इसको हम t से रिप्लेस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू h naught। ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट यही है। अब हमारे पास चीज आसान हो गई। वी कैन से दैट 1 or not one time of age of the universe equals 1/h naught। 1 यहाँ आ गया, हमने इसको फिर से रीअरेंज कर दिया क्योंकि हमने टाइम मालूम करना है, कितना टाइम इसने लिया, और हम यहाँ से इधर जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट, ठीक। सो अब आपने वैल्यूज पुट करना है, ये तो कांस्टेंट है, नोन वैल्यू है, ठीक है। सो t equals 1/h naught equals 1 million per sec. Per sec is the unit of for measuring of celestial bodies, ठीक है। अब ये मिलियन में है, डिवाइडेड बाय क्या है, 74 times 10 to the third million पर सेकंड। ये कांस्टेंट है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एच नॉट। एच नॉट की वैल्यू है और ये कैलकुलेट की गई है, यहाँ हमने हबल ने ये कैलकुलेट की है विद रिस्पेक्ट टू मेजरिंग हाउ फास्ट यूनिवर्स इज मूविंग और एक्सपेंडिंग, ठीक है, वो अलग टॉपिक है। अच्छा, अब ये कांस्टेंट आ गया, अब इसको हमने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता यूनिट में कन्वर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बैकवर्ड, अगेन इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई करना है, टाइम्स क्या लेते हैं, लाइट ईयर, ठीक है, बिकॉज 1 per sec is equal to 3.26 light years. So times 3.26 light year
एंड डिवाइड बाय अगेन विद दिस टर्म। अब ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स के रूल्स है, इसी वजह से मैं ये कर रहा हूं। से ठीक हो गया। एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय मीटर के हिसाब से लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लाइट ईयर 9.46, क्योंकि 1 लाइट ईयर में हमारे पास तकरीबन 9.46 टाइम्स 10⁻15 मीटर होती है। ठीक हो गया, बहुत बड़ा नंबर है। 6 टाइम्स 10⁻15 मीटर डिवाइडेड बाय विद दिस टर्म, एक ही लाइट ईयर है ना, या तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस और या विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक हो गया, लाइट ईयर। अच्छा, अब क्या करना है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। अब ये चूंकि मतलब कैलकुलेटर की कैलकुलेशन है, ठीक है, उसके बगैर ये मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये मैंने यहाँ अपने साथ ये नोट किया, मैं आसान जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या है, 4.28 टाइम्स 10⁻7 सेकंड। अब ये टर्म अगेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद आवर डेज एंड देन वी नीड ईयर to get our desired result, ठीक है। सो क्या है हमारे पास, 4.28 टाइम्स 10⁻7 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1 आवर डिवाइडेड बाय, एक आवर में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड है एक घंटे में। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक या प्लस 1 डे डिवाइडेड बाय, और एक डे में कितनी घंटे होते हैं, 24 आवर है। ठीक हो गया। और इसको आपने आगे जाके किससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैंने पहले बोला 1 ईयर विद रिस्पेक्ट टू, और एक ईयर में कितने डेज है, 365 डेज। ठीक है, तो ये मतलब डोंट इग्नोर द कॉन्सेप्ट। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 1.36 टाइम्स 10⁻10 ईयर्स। बाकी जो यूनिट है डे सेकंड, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मतलब ये वाला इससे कट हो गया, डे इससे कट हो गया, ठीक है, और सेकंड से कट हो गया। लेट मी डू इट विद रेड, सेकंड से कैंसिल हो गया, और से कैंसिल हो गया, डे से ये 1 डे है, इससे कैंसिल हो गया, ऊपर भी वही बात है। ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास ये फिगर आती है तो फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा according to the rule we have to move this point to the right। ठीक है, तो हमारे पास 3.6 टाइम 10⁻9, जब ये पॉइंट आ गया तो हमारे पास डिजिट 1 डिक्रीज हो गया, ईयर्स बन गया 3.6 टाइम 10⁻9 ईयर्स बन गया। और इन concise form we say 3.6 something billion years। तो ये आपका डिजायर्ड आंसर आ गया। और भी मतलब 2-3 और भी तरीके हैं, लेकिन उसी के हिसाब से जो तरीके हैं, कोई मतलब कहता है कि ये मतलब 10 बनते हैं, 10 बिलियंस बनते हैं, कोई कहता है कि 11 है। कई के तरीके से जो है ना, जो पढ़ा खाते हैं वो 14 के करीब भी आते हैं, लेकिन वी आर गोइंग रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज ऑफ द एज ऑफ टू द वैल्यू ऑफ द एज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब था। नॉट अर्थ
वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स। अर्थ नहीं, अर्थ तो मतलब अपनी जगह जो है ना रिवॉल्व करते अराउंड सन, और फिर रोटेशन भी करते एट द सेम टाइम to give us 24 hours a day। ठीक हो गया। सो आई होप यू गेट द बेसिक आइडिया। और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी बता दे, टाइम बहुत हो गया है, जल्दी जल्दी प्लीज। It seems there is no question from your side, so I will leave and then see you soon tomorrow at the same time with new topics. So nice of you.